ایک حوالہ نکالا متی رسول کی معرفت کی گئی انجیل، اس کا 13 باب اور 49 میں خدا ان کے زندہ کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ ایک بات اور میں نے سکھائی تھی، انجیلیں کتنی ہیں؟ دلیری نہ کہنا سارے کتنی ہیں؟ لوگ 4 کہتے ہیں، لکھنے والے 4 ہیں، لکھنے والے 4 ہیں، انجیل ایک ہی ہے۔ کئی نے پوچھو انجیلہ کہ کہتے ہیں 4، انجیل ایک ہی ہے، اور وہ انجیل کس کی ہے؟ یسوع مسیح کی۔ چوتھی 4 کتنی ہو گئی ہیں پھر؟ یسوع مسیح ایک ہی انجیل ہے بھائی، لکھنے والے 4 ہیں، لکھنے والے 4 ہیں، انجیل ایک ہے۔ جی ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13 باب 49ویں آیت ہمیں یوں بتاتی ہے، میں پڑھ رہا ہوں سنیے۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، زور سے کہیں آمین۔ شریر اور راست باز میں ہم نے فرق یہاں دیکھا ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل بیان کرتی ہے، انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے کیا ہوں گے جی؟ فرشتے نکلیں گے اور کیا کریں گے؟ شریروں کو راست بازوں سے کیا کریں گے؟ جدا کریں گے۔ ان کے نال ہی رہ رہے ناکر بھائی، ان کے نال نال سارے، شریر بھی نال نالی تے راست باز بھی نال نالی۔ تے شریر سمجھتا ہے کہ مینوں سب کچھ پتہ ہے، وہ صادقوں کو بلکہ مذاق کرتا ہے، بلکہ مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں صادق کو کبھی بھی آنچ نہیں آتی ہے۔ میں نے اس دن بھی ایک کلام پڑھ رہا تھا، تو لکھا ہے ہم گرائے تو جاتے ہیں لیکن حالات نہیں۔ تو یہ خدا کیونکہ ہمارے ساتھ ہے، ہم لاچار نہیں چھوڑے جاتے، ہم بے یارو مددگار نہیں چھوڑے جاتے، کیونکہ ہمارا مددگار کون ہے؟ خدا ہے، ہمارا بچانے والا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم دکھ میں بھی ہوں تو وہ ہمارے ساتھ ہے، آمین۔ وہ ہمارا بچانے والا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ وقت آنے والا ہے کہ شریروں کو راست بازوں سے کیا کرے گا جی؟ جدا کرے گا، اور ان کو آگ کی کس میں ڈالے گا؟ بھٹی میں ڈال دیں گے، فرشتے ڈال دیں گے، وہاں رونا اور کیا ہوگا جی؟ پیسنا ہوگا۔ اگر اس کی ہم 25ویں باب کی 32ویں آیت کو پڑھیں تو اس میں اور کلیئر ہے چیزیں ساری۔ متی رسول ہی کی انجیل ہے جی، اس کی معرفت کی انجیل ہے، اس کا 25واں باب ہے اور اس کی 32ویں آیت۔ یہ آخر بھائی پڑھیے 32، اس میں ساری چیزیں ہمیں کلیئر ملے گی۔ اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ یس، اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے کس میں لو؟ میراث میں لو۔ اسے کس میں لو جی؟ میراث میں لو۔ تو اس وقت وہ بادشاہی جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے وہ ہمیں دی جائے گی۔ کن کو دی جائے گی؟ صادقوں کو۔ کن کو دی جائے گی؟ صادقوں کو دی جائے گی۔ صادق کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟
خدا کے ساتھ چلنے والا سادہ شخص، خدا سے ڈرنے والا، خدا کے خوف میں رہنے والا، خدا کے کلام پر عمل کرنے والا، ہاں، اور خدا کے کاموں کو ظاہر کرنے والا، جی برگزیدہ، یس، بلکہ جو بلایا ہوا برگزیدہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صادق۔ تو اس لیے خدا صادقوں کے کیا ہے جی؟ ساتھ ہے، صادقوں کے ساتھ ہے۔ صادق بننا، خادم بننا آسان بات نہیں ہے، آسان بات ہے اکثر باجی، آسان بات ہے، صادق بننا آسان کام، بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا کے تانے، لوگوں کے ادھر ادھر، بڑی فائر، بڑے تیر کلام کہتا آئیں گے، لیکن خدا سنبھالنے والا، اس بات پر ہم نے ایمان رکھنا۔ اس سے میں ایک ریلیٹڈ ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص کسی صادق شخص کے پاس آتا ہے، مین کے خادم کے پاس آتا ہے، کسی ایماندار کے پاس آتا ہے، تو کہتا ہے میں بھی ایماندار بننا چاہتا ہوں، میں بھی خادم بننا چاہتا ہوں۔ تو صادق نے کیا، کیونکہ صادق سمجھ گیا کہ یہ ایم ہی آیا ہے، کام ہے کوئی نہیں، تو اس نے کہا صادق بننا اتنا آسان نہیں ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ کہتے نہیں میں بننا، تسی مینوں اپنی شاگردی سکھاؤ تے صحیح نا، تسی مینوں سکھان دی کوشش تے کرو، میں بنا گا۔ کہتا اوکے ٹھیک ہے، کہتا ویکھ لو مشکل کام ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لیا، کہتا شاگردہ نہیں، شاگرد نہیں ہے، جدے پہلا ٹیسٹ تیرا، پہلا ٹیسٹ کے بعد پھر شاگرد کر پاؤں آئیں گے۔ رات ہوئی، اس کو کمرہ دے دیا گیا، اس میں سو گیا۔ صبح اس کے پاس کھانا بھیجا گیا، ایک تازی روٹی اور ایک تازہ سالن، ایک تازی روٹی اور ایک تازہ سالن، ایک 2 دن کا پرانا سالن تھا، ایک 2-3 دن کی پرانی روٹی۔ تو اس نے، استاد نے پہلے اس سے یہ ضرور کہا تھا کہ تو خدا کو کس طرح جانتا ہے، یا تو خدا کو اپنے سے اعلیٰ جان، خدا کو قادر مطلق جان، اپنے سے اعلیٰ جان، اپنے سے معتبر جان، تو کیسے خدا کو جانتا ہے؟ کہتا جی میں ایسے جانتا ہوں۔ پھر خود اس نے کہا، صادق نے، اس راست باز شخص نے، اس خادم نے کہا کہ تو خدا کو کیا کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا میں ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ کہتا اپنے برابر تو نہیں کدھر سمجھتا، یا اپنے سے نیچے تو نہیں کہیں خدا کو سمجھتا؟ کہتا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو خدا کو معتبر سمجھتا ہوں، اعلیٰ سمجھتا ہوں، اس خالق ہے، مالک ہے، میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں۔ اچھا اگر ایسے سمجھتا ہے تو ویری گڈ۔ کہتا ٹھیک ہے، پھر آج تیرا ٹیسٹ بھیج دیا گیا۔ تو جیسے میں نے بتایا، ایک تازی روٹی، فریش گرم سالن ہے نا باجی، گرم نہیں پوچھو تم ہمیں نکلنا سے پہن چھان، ایک ایسا، اور ایک 2-3 دن کا پرانا باسی کھانا اس کو کیا گیا۔ جیسے ہی کھانا اس کے پاس آیا، تھوڑی دیر میں دروازہ نوک ہوا، ٹک ٹک ٹک، کہتے یار میں کھانا کھان لگا سے پتہ نہیں کون آ گیا۔ کھولا دروازہ تو ایک مانگنے والا فقیر سامنے تھا۔ اس نے کہا یار اچھا ہے کھانا، پیا صحت کی روٹی، میں تازہ کھاؤں۔ اس کو پرانی روٹی اور پرانا سالن اس کو دیا۔ واپس جب پھر صادق کے پاس گیا تو بولا جی میرا ٹیسٹ پورا ہو گیا، ہوں میں تھوڑا شاگرد بن سکنا؟ اس نے بولا نہیں بن سکتا۔ اس نے بولا تیرا ٹیسٹ ہو گیا ہے، تو ٹیسٹ میں فیل ہوا۔ اس نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ خدا کو تو سمجھتا کیا ہے، خدا کو تو جانتا کیا ہے، خدا کے بارے میں تجھے سمجھ کیا ہے؟ وہ کہتا میں نے یہی کہا تھا کہ خدا معتبر ہے، اعلیٰ ہے، مقدس ہے، پاک ہے، عالموں کا خالق اور مالک ہے، مجھے یہ سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا تجھے اگر یہ سمجھتا تو جو روٹی تازہ تھی، جو سالن تازہ تھا، جو سامنے آیا تھا، وہ اس کو تجھے دینا چاہیے۔ اگر یہ دیتا تو سمجھتا کہ خدا مجھ سے اعلیٰ ہے، خدا مجھ سے معتبر ہے، خدا سب کچھ خالق اور مالک ہے، وہی روٹی، وہی رزق، وہی زندگی، وہی سب کچھ دیتا ہے۔ تو تو نے کہا بھائی دے دو۔ ہو سکتا ہے وہ دروازے پر فقیر نہیں، خدا آیا تھا، جس طرح ابراہم کے پاس فرشتوں کے بیس میں خدا آیا تھا۔ ابراہم نے کیا تھا؟ تازہ بکرا ذبح کیا، سارا سے کہا تازی روٹی گرم بنا کے اسے دے۔ اس لیے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، وہ جان گیا کہ یہ فرشتے کے روپ میں خدا ہے۔ اس لیے یسوع نے بھی یہی کہا کہ اگر تم نے میرے بھائیوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، اگر وہ غم میں تھے، پریشانی میں تھے، دکھ میں تھے، اگر تم نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو میرے ساتھ۔ یہی یسوع نے نصیحت۔ اگر دنیا میں تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم کتنا یسوع سے، کتنا خدا سے پیار کریں، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ تو یہی ہم فیل ہو جاتے ہیں، یہی ہم کیا ہو جاتے ہیں جی؟ اچھی چیز
जब हम दूसरे को देते हैं तो इट्स मीन हम खुदा से प्यार करते हैं। हम दावा करेंगे हम खुदा से बड़ा प्यार करते हैं ते सामने को आ जाए तो कोई भैड़ी जी चीज़ है ना पट्टी शर्ट जी ना चाहे दे दो तो भावे में बड़ी पुरानी है टुट्टी पच्ची बोलो फटी मैं पहनूंगा नहीं इसको दे दो। खुदा आपके लिए आसमान के दरवाजे को खोल। आमीन। तो ये एक्चुअली टेस्ट है। तो इसलिए साधक बनना, खादम बनना, रास्तबाज बनना बड़ा औखा काम है, लेकिन जिसको ये समझ आ गई, जो ये बन गया, फिर वो खुदा के बगैर रह ही नहीं सकता। आमीन आमीन। इसलिए इसमें आगे पढ़े तो पूरी स्टोरी इसके अंदर शामिल है। जी आखिर भाई इसको जरा पढ़िएगा। आलम बाला से 35वें आयत से पढ़े। क्योंकि मैं भूखा था जी, इसी चैप्टर जिसको पढ़ रहे थे, चैप्टर 25 उसकी 32 से आगे 35 से पढ़े 35। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़े पहनाए? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं। जी कौन कह रहा है ये? खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये शुरू किया तो मेरे ही साथ किया। किसके साथ किया जी? मेरे ही साथ किया। यीशु कह रहे हैं कि अगर मेरे छोटे भाइयों, मेरे खादमों, ईमानदारों के साथ अगर तुमने ये सब कुछ किया तो इतमीन मेरे साथ किया, मेरे ही साथ तुमने किया। देखा है जिन मैं रोटी की मिसाल देती, तुमसे कहता हूं कि जब तुमने इन सब में से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया, ये शुरू किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए जी? इब्लीस जड़ा शरीर शख्स है ना, तो वो फरिश्ते भी शरीर ही ने। ये ना समझो फरिश्ते तो बड़े अच्छे लोग, वो फरिश्ते भी शरीर ही है, लिखा है। फिर वो बाएं तर वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो मिन लानतियो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तो दोनों थे सड़ गए। जेड़े पाक फरिश्ते हैं, खुदा के फरिश्ते हैं, उन्होंने नाल असीं भी खुशियां मनाते ना, हाँ, ते ओदे फरिश्ते भी ते वो भी सारे कितने सड़ गए, क्योंकि उनकी शरीरों की रहनुमाई करने के लिए भी उनके शरीर फरिश्ते हैं। उनकी रहनुमाई के लिए भी शरीर फरिश्ते उनकी रहनुमाई करते हैं। इसलिए उनके फरिश्तों को भी और उन इब्लीसों को भी कहाँ डाला जाएगा जी? आग में डाला जाएगा। और हमेशा की आग है, वो फिर बुझने की नहीं है। तो इसलिए शरीर में और साधक में फर्क है। साधक खुदा से प्यार करता है और जो कोई खुदा से प्यार करता है वो उसके लोगों से प्यार करता है। ये पहली कंडीशन है, पहली शर्त है रास्तबाज कि रास्तबाज उसकी बनाए हुए लोगों से भी क्या करता है जी? प्यार करता है। शरीर की शराकत ना करना। ज़बूर 1:1 आखिर भाई जरा कर दे, अब इसको जल्दी जल्दी हम ना। ज़बूर पहला और उसकी पहली आयत। मेरा बच्चा तुझे भी तैयार है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीरों की सलाह पे चलना चाहिए। कलाम हमें कहता है शरीरों की सलाह पे नहीं चलता। शरीर बड़े अच्छे अच्छे मशवरे भी दे देंगे,
शरीरां दे मशवरे बड़े सोहने होंदे ने, एकदम ते आदमी कहदा ओ वाओ क्या बात है, क्या कमाल मशवरा है ना, देखता हुआ तो दिल करता है चलो टोरी जाओ कर ही लो, लेकिन कलाम क्या कहता है? नो, मुबारक है वो आदमी, वो क्या आदमी है जी, वो मुबारक है, वो मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये कलाम हमें हमारी रहनुमाई कर रहा है कि शरीरों की शराकत ना ही करो तो चंगा है, ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि शरीर हमेशा वही बातें करेगा जो उसके शरीर फरिश्ता उसे समझाएगा। इसलिए लिखा मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठा करते, मैंने पहले भी कहा कि शरीर शख्स वक्ती वो नजर आता है हर तरीके से सरफराजी में, लेकिन वो सादतों पर, खादमों पर, ईमानदारों पर क्या करता है? ठट्ठे, लिखा ये ठट्ठे बाजों की मजलिस, वो ठट्ठे उड़ाते हैं, उनकी मजलिस में मैं नहीं बैठना, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर खुदा इन्हां दा तो इन्हां नूं क्यों नहीं सरफराज किया, इन्हां दे क्यों परेशानियां आईयां ने, ये बड़ा खुदा ना चाहते हैं। यस, ऐसा ठट्ठा करते हैं, पता है लोग ऐसा भी कहते हैं, वो इन्हां बड़ी दुआ करते हैं, इन्हां को गड़ा खुदा, लेकिन वो जानते नहीं। ये हिस्ट्री उठाकर देख लें, खादम किस किस तरह से पिछे हैं, खादमों ने किस किस तरह से दुख उठाए हैं, किस किस तरह से परेशानियों में से निकलकर खुदा के साथ वो चलते रहे हैं और वफादार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी गिला नहीं किया, क्योंकि वो खुदा के लोग। हालेलुया। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की सारी बरकतों, बख्शिशों, रहमतों के लिए कि हमारा खुदा मेहरबान खुदा है, हमारा खुदा हमेशा संभालता है और हमारी तरबियत करता और हमारी पालना करता है। अगर इंसान पहला बाप निकालें उसकी 15 है, उसमें भी देखें खुदा किस तरह से हमारी तरबियत करता है। इंसान अतर भाई और मेरा जो निकाल ले पढ़ सकता है। दो, एक प्रिंसिपल थे, एक टीचर में, दोनों का मुकाबला भी। अच्छा नहीं सर, सीख देना सी कलाम इमसाल पढ़ लीजिए, अगर आपने आता हुआ पढ़ लीजिए, पढ़े इमसाल फर्स्ट, उसकी वर्ष नंबर है जी फर्स्ट, नहीं 15। तो ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमरा ना जाना, तू उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपने पाँव क्या करना चाहिए? रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। और खून बहाने के लिए क्या करते हैं अंदर साहब? छेती करते हैं, लेट ना हो जाए, देर ना हो जाए। शरीर है ना, शरीर है तो छेती ताकि मेरा वार चले, पता लग जाए। लेकिन वो खुदा की ताकत को नहीं जानता शरीर, ये खुदा की ताकत के आगे कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती। आमीन। खुदा कादर मुतलक है, वो सब कुछ करने पर कादिर है, उसके आगे कोई भी ठहर नहीं सकता है। जी आगे, शरीर का मतलब ये होता है, शरीर के अंदर गुमान होता है, गरूर होता है, और गरूर का कलाम में लिखा है कि मगरूर का खुदा क्या करता है? मुकाबला करता है। मगरूर का क्या करता है? मुकाबला करता है। खुदा उसके मदो मुकाबल खड़ा होता है। मगरूर का खुदा मुकाबला करता और आज इसको तौफीक देता, सादतों को तौफीक देता, उन पर वो रहम और फजल को जारी करता है। आमीन 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 आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए कि खुदा हमारी कलाम से तरबियत करता है। शरीर की कुर्बानी और दुआ, इंसाल 15, इसी का 15 खोलें, तीसरा पॉइंट। आठ आए 15 बाप की 8 आए।
शरीरों के ज़रिए से खुदावंद को नफरत है। सुने जी, ज़बिया किसको कहते हैं? कुर्बानी को। किसको कहते हैं? कुर्बानी को। जो भी कुर्बानी गुजरानी जाएगी वो भले जो कुछ मर्जी बांटता रहे, देता रहे, वो खुदा को कबूल नहीं होता, क्योंकि वो खुदा के कलाम की बेहुरमती, खुदा के लोगों की बेहुरमती करता है। उसका वो सारा कुछ भी बेफजूल है जी। और रास्तगार की दुआ उसकी खुशनुदी है। और रास्तबाज की दुआ उसकी क्या है जी? खुशनुदी है। रास्तबाज शख्स जो दुआ भी करता है वो उसकी क्या है? खुशनुदी का मतलब दसना जरा। खुशी, बहाली, तरक्की, हिफाजत, खुशनुदी। खुशी की कब्र के अंदर सब चीजें पाई जाती हैं, खुशी के अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं। इसलिए लिखा है कि रास्तबाज की दुआ उसकी क्या जी? खुशनुदी है। इसलिए रास्तबाज खुदा की निगाह में है। रास्तबाज खुदा की निगाह में है। हमें आगे छेती छेती करेंगे। शरीरों की रविश से खुदावंद को नफरत है। क्या है जी? पढ़िए देखिए, शरीरों की रविश से खुदावंद को क्या है? रविश किसको कहते हैं? रविश जो हमारे काम होते हैं। इंसानी किताब में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके क्या बना देता है? दोस्त बना देता है। रविश का पसंद आना जरूरी है। रविश मीन आदतें, रविश मीन हमारे काम। जब खुदा को पसंद आते हैं तो हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देता है। तो जब रविशें ठीक ना हो तो दोस्त भी, भैन भरा भी, खादम भी नाराज। फिर क्या होता है जी? फिर सारी चीजें दूर हो जाती हैं। इस रविश पर गौर करने की जरूरत है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हम कहाँ खड़े हैं जी। पर वो सदाकत के पैरों से मोहब्बत रखता है। और वो किससे मोहब्बत रखता है जी? सदाकत के पैरों से। सदाकत, फिर बात आएगी सदाकत से, मीन के सच्चाई। किस पे? किससे जी? आखिर में जोर ना दसूंगा। सदाकत के पैरों से। सदाकत के पैरों से मतलब जो सच्चे पांव हैं उनसे क्या रखता है? मोहब्बत रखता है। सच्चाई से खुदा को मोहब्बत। सदाकत पर चलते जो सदाकत पर चलते हैं उनसे खुदा को क्या है? मोहब्बत। ये जड़े बुराई पे चलते उन्होंने खुदा मोहब्बत करता है। लिखे नहीं लिखा शरीरों की रविश से खुदा उनको नफरत है, पर वो सदाकत के पैरों से क्या रखता है जी? मोहब्बत रखता है। राह से भटकने वालों के लिए क्या है जी? पढ़िए, सख्त क्या है? सख्त तादीब है। क्या है जी? सख्त तादीब। तादीब का मतलब दसो जरा उचित है। सख्त वार्निंग है। यस, ये वार्निंग है। ये क्या है? वार्निंग है, अलार्मिंग सिचुएशन है। खुदा अलार्मिंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि ऐ शरीर बाज आ जा, मुड़ जा। खुदा क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन फिर भी खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक क्या पहुंचे जी? पहुंचे कि उसकी मोहब्बत है, वो सबसे प्यार करता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ बर्तन बनाए किसके लिए गए हैं? बेइज्जती के लिए, जलाने के लिए, ईंधन के लिए, ताकि कोई ऐसा भी तो शरीर के साथ है तो शरीर को नहीं बचने देगा। शरीर को चाहता। मिशन दो है। मिशन कितने हैं? लोग कहते हैं ये मिशन, वो मिशन, वो मिशन, लेकिन कलाम कहता है, मैं इसको बताता हूँ कि मिशन दो है। मिशन कितने हैं जी? केड़ा केड़ा मिशन है? एक खुदा का मिशन है और एक शरीर का मिशन है। शरीर चाहता है कि सारे लोग मेरी जहन्नम में छोड़, मेरी जहन्नम पर ही और सड़न बाबा चौके सारे लाल मैं भी सड़ता हूँ। शरीर के अंदर जी चौके लोग सड़न बाबा पांबड़ लगे हैं। क्या चाहता है वो? पांबड़ लगे। शरीर की लाना चाहता है, पांबड़ लाना चाहता है। बाबा आग बाबा चाहिए हुई ज्यादा तेज चाहिए ना भाई। तो शरीर अंदर ये मिशन है उसका कि सारे लोगों को मैं जहन्नम में लेकर जाऊं। लेकिन खुदा का मिशन ये है, खुदा ये चाहता है कि सारे हलाकत से, सारे हमेशा की आग से बच जाएं और हमेशा की जिंदगी को पाएं और अमन में रहें। हालेलुया। खुदा का ये मिशन है और हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं। हमें इस मिशन के लिए बुलाया गया है। आमीन। ताकि लोगों को खुशखबरी जा दसी, वो बच जाओ, तौबा करो, तौबा कर लो।
खुदा तुम पर रहम करेगा, फजल करेगा। लेकिन शरीर नहीं सुनता। शरीर कहता मैनू केड़ा वेख रहा, पता ही कुछ नहीं, मैं ते पता नहीं की कीता है, आई डोंट नो की कीता। तो शरीर ये समझता है, गलत फहमी में है शरीर। जी हो गया कंप्लीट। और तंबी से नफरत करने वाला मरेगा। लो जी सुन लो कलाम के अंदर तंबी का मतलब होता है जो नसीहत करता है, जो समझाता है, वो क्या करेगा? उससे नफरत फिर पढ़ना जरा। और तंबी से नफरत करने वाला मरेगा। जो तंबीह करता है, खादमों का काम है क्या करना चाहिए? तो जो उससे नफरत करेगा, आयनू बड़ा पता है वो एक खादम इंजी करते थे, एडा बड़ा खादम, वो मरेगा। वो क्या होगा? अल्लाह साहब वो क्या होगा? मरेगा। कलाम यही कह रहा है, वो क्या होगा जी? क्योंकि वो खुदा के कलाम को रद्द कर रहा है, अपने खादम को नहीं, इंसान को नहीं, बल्कि खुदा के रूप में खादम होता है। तो जो उसको रद्द करता है वो खुदा को रद्द करता है। आमीन आमीन। तो इसलिए लिखा है जी आगे बढ़ो। जी अगली आयत पढ़ लो। जब पाताल और जहन्नम खुदावन के जब पाताल और जहन्नम खुदावन के हजूर खुले हैं, बनी आदम यानी ये दोनों चीजें खुली हुई हैं। क्या क्या खुला जी? जहन्नम और डेविड भाई, जहन्नम भी खुले है, दूसरा पाताल भी खुला हुआ है। उन कितने जाए ये डिसाइड खुदा ने तो रास्ते बता दिए, ये अब हमारे ऊपर है कि हमने किस राह पर जाना। जी तो बनी आदम के दिल का क्या जिक्र? तो बनी आदम के दिल का क्या जिक्र? ठट्ठाबाज तंबीह को दोस्त नहीं रखता, वो नफरत ही करता है तरबियत से। क्या करता है? वो नफरत करता है। इसलिए लिखा है। अच्छा, शरीर की खुशहाली चंद रोज है, जैसे मैंने पहले कहा था। कितने रोज है? वो समझता है कि हमेशा रहूंगा, लेकिन चंद रोज है। इसके लिए एक हवाला पढ़े, अय्यूब 18 बार बोलिए जरा। अय्यूब 18 बार उसकी 5 शायद 18 की 5 पॉइंट हमारा है जी। 5वां, शरीर की खुशहाली चंद रोज है, मतलब थोड़े दिनों की है जी। अय्यूब की किताब है, उसका 18 बाब और 5वीं आयत। डाला ये पढ़ो। बल्कि शरीर का चिराग गुल कर दिया जाए। बल्कि शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा। गुल का मतलब समझ आता है जी? बुझा दिया जाएगा। गुल का मतलब है ये ना कहना गोल गुलाब वाला गोल हो गया, नहीं। गुल का मतलब तो यहाँ लिखा गया है वो बुझा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बुझा दिया जाएगा। और उसकी आग का शोला, और उसकी आग का शोला हो जाए। बेनूर हो जाएगा। आमीन। बेनूर का मतलब समझ रहे हैं कि नूर तो खाली बुझा दिया जाएगा। जेड़ा बुझ जाए ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਨੀਤੀ ਬਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਨੋ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੁੱਪ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ अदालत के अंदर। साहब सही कह रहे हैं, कलाम सही दस रहे ना। उसकी आग का शोला बेनूर हो जाएगा। आगे 6ठी आयत। रोशनी उसके डेरे में, रोशनी उसके डेरे में तारीकी हो जाएगी। रोशनी उसके डेरे में क्या हो जाएगी जी? अंधेरा उसके डेरे में हो जाएगा। जो शरीर है, जो खुदा से नफरत करता, उसके कलाम से, उसके लोगों से नफरत करता, उसके डेरे में रोशनी की जगह तारीकी हो जाएगी। और जो चिराग उसके ऊपर है बुझा दिया जाएगा। जो चिराग उसके ऊपर है वो क्या कर दिया जाएगा? बुझा दिया जाएगा। जो शरीर के फरिश्ते उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, वो सारा कुछ बुझा दिया जाएगा। तो सारा कुछ क्या कर दिया जाएगा? बुझा दिया जाएगा। अच्छा, ये हमारा पॉइंट था और बहुत रेफरेंस है, लेकिन हम आगे चलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इसको जल्दी जल्दी खत्म करें। शरीर का बुरा हाल होगा। इमसाल में आएगा, इमसाल 4:19। जिसको मिल जाए वो पढ़ सकता है। इमसाल 4:19 ये पॉइंट है हमारा, शरीर का बुरा हाल। शरीरों की रात तारीकी की मानंद है।
शरीरों की राह कैसी है जी? तारीकी की। तारीकी क्यों दी? नेरा। यस, बैठक ने सही दसा। फिर तारीकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तारीकी, नेरा कोप हो जाएगा। और कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए क्या है जी? चराग। और राह के लिए क्या है? क्यों ना नेरा हो जाएगा। अर्शद भाई, शरीरों का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा जी। वो नहीं जानते, वो नहीं जानते इन चीजों से, किन चीजों से उनको ठोकर लगती, उनको ठोकर, वो नहीं जानते कि किन चीजों से उनको ठोकर लगती, वो पता ही नहीं होना। हाँ, मैं हमेशा अपने उस्ताद की बात किया करता हूँ, समझर साहब की। वो कहा करते थे कि जब खुदा का गज़ब नाज़िल होता है तो ऐसा नहीं वो डंडे मारता है, वो अक्लों को बंद कर देता है। वो क्या करता है जी? अक्लों को बंद कर देता है। इंसान की अकल बंद हो जाती है, उसको समझ नहीं आती। वो अपने हिसाब से तो सीधा काम कर रहा होता है, लेकिन वो उल्टा काम, क्योंकि खुदा ने मत मार देती। उसकी क्या कर दी जी? मत ही मार देती। तो आज भी लोगों की मत मरी हुई है, आज भी लोगों की मत बची हुई है। समझ नहीं, उन्होंने समझाओ तो उन्होंने मैनू पे समझा दो। वो मैं तो बड़ा पढ़े मैं तो पर केड़ी डिग्रियां पढ़ी ना भाई, डिग्रियां पढ़ ली यार, लेकिन कलाम तो नहीं पढ़े ना तू। कलाम तो तेन पढ़ने की लोड़ है ना, खुदा के साथ चलने की तो जरूरत है ना, खुदा के हुक्मों को मानने की जरूरत है ना। तो आज भी लोग ऐसे हैं दुनिया में। आगे हमारा पॉइंट है जी 7वां, खुदा बदकारों को, इन शरीरों को सजा देता है। आगे चलिए, इसको आगे वाला पॉइंट चलते हैं। शरीर पर आफत आएंगी, बिल्कुल ठीक है। शरीर का अंजाम, ये पॉइंट है, टाइम हमारे पास कम है। शरीरों की अदालत ज़रूर होगी, अदालत तो ज़रूर होनी है, इस बात को तो ईमान रखते हैं ना। गुनाहगार आसमान में नहीं जाएंगे, हमारा पॉइंट है। फिर खुदा ने चाहे तो हम इसको देंगे। गुनाहगारों के लिए तालीम हम देते रहेंगे कि शायद वो बच जाएं, शायद वो बाज आ जाएं, क्योंकि खुदा यही चाहता है। ज़बूर 25 उसकी 8 आयत में है, गुनाहगारों के लिए तालीम चाहिए। ज़बूर 25 है, और इसकी 8 आयत। खुदावंद नेक और रास्त है। सुने जी क्या लिखा है खुदावंद के जिंदा कलाम में? खुदा क्या है जी? नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राय हक की क्या देगा जी? देखो जी, उधर तालीम देता रहना हो, ना सुने तो ये शरीरों का अपना कसूर है। कलाम हमें क्लियर हर चीज़ बता रहा है। खादमों का काम, रास्तबाजों का काम खुदा उनके कलाम की सच्चाइयों को बताना है, ताकि सब जाने बच जाएं, तौबा कर जाएं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा की ये मर्जी है, खुदा हमसे सबसे प्यार करता है। लेकिन असी आप ही शरीर की गल मान के फिर सड़ना तो है ना, फिर बचना तो असा कोई नहीं, क्योंकि जो शरीर की गल मानांगे तो फिर शरीर को तो फिर फरिश्ते भी, सिखाने वाले भी, दसन वाले भी, तो सारे कितने जाएंगे? उत्थे जाएंगे फिर जितने शरीरों ने सड़ना है। अच्छा 51 इसका निकालिए जरा, ज़बूर 51, ये आपने पढ़ लिया, नोट कर लें, इसको घर में जाके पढ़ेंगे। और इसको 51 और इसकी 13। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। सुन ले जी, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। और गुनहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। बहुत से गुनहगार ऐसे हैं जिन पर फजल हो जाएगा, जो बच जाएंगे, लेकिन बहुत से जो शरीर के बहुत ज़्यादा कब्जे में हैं, गहरे में चले गए हैं, वो नहीं बचेंगे, वो नहीं बचेंगे। तो इसलिए हमें खुदा के खादम होते हुए हमारे ऊपर ये ड्यूटी है कि हम वफादारी से, दयानतदारी से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान करते रहें और चाहें कि हर जान बच जाए, सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। सो सादक और शरीर में ये इम्तियाज़ आज हमने सीखा है। लास्ट टाइम हमने इसी पे बात की थी, लेकिन वो पूरा मैसेज नहीं हो पाया था। आज हमने उसको और थोड़ा सा क्लियर किया है कि सादक और शरीर में क्या फ़र्क है। इसलिए सादक लोगों की, ईमानदारों की
خادموں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم یسوع کے انجیل کی منادی کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ راہ حق اور زندگی یسوع ہے، یسوع کے بغیر کوئی بھی زندگی نہیں دے سکتا۔ آمین۔ خدا ہم آپ سبوں کو برکت دے۔